Hello students, good morning. How are you all? I'm fine. So student, today we are learn for chapter number 18, games we play. So first of all, open your textbook for subject environment. Open it. Very good. Now page number 120. नाउ देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है उसमें क्या है, 2 गर्ल्स, एक वुमेन एंड 1 बॉय, और एक गर्ल है वो गेम खेल रही है, दिख रहा है ना? यस. नाउ वी आर स्टार्ट फॉर रीड दिस चैप्टर. ऑल द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग हॉप स्कॉच इन द लैन. Avantika and her sister Nandita were also playing, but Nandita was not able to play the game in the right way. She was not knowing about this game. Avantika says, "Listen to me carefully, Nandita. Understand the game. Throw the marker in the first box, then on one leg jump over this box into the next one. Keep it mind, you can put both your feet down together only in the boxes. Mark it 4 and 5 and 7 and 8. Take care. Your feet shall not touch the line. If they touch, you are out of the game. When you reach the last box, turn around. When coming back, pick up the marker and bring it back. Now throw the marker in the next box. Similarly, keep throwing the marker in all boxes one by one and continue the game." Now next page number 121. The children started playing again. Shine Long, Kaki in bracket auntie was watching them play. देखो यहाँ पे एक वुमेन खड़ी है ना, वो बच्चों की काकी है, वो बच्चों को देख रही है. She too felt like playing with them. She could not keep herself from asking, "Can I play with you?" The children shouted around. ये गेम उसकी काकी को भी पसंद था और उससे रहा नहीं गया, तो उसने भी बोला कि मैं आपके साथ खेल सकती हूँ. अनीता ने कहा, अनीता says, "काकी, will you play?" अनीता काकी को पूछ रही है, काकी क्या आप खेलोगी? काकी says, "Do you think I do not know how to play hopscotch? At your age we played so many different games." Nandita says, "Which games did you play, Kaki?" Kaki says, "Langdi, hide and seek, 7 tails and so many more. In Kabaddi, our team was the best among 10 villages." रजत says, देखो यहाँ पे पिक्चर में एक बॉय खड़ा है ना, उसका नाम रजत है. रजत says, "चाची, how did you get so much time? We hardly get any time to play." Kaki says, "You are so busy watching TV all the time." Nandita says, "Kaki, did Kaka play this game too?" Kaki says, "Your Kaka says that he used to play marbles, 7 tails, tiles, kabaddi, gilli danda and so many other games the whole day. While flying kites, he would even forget his meals." Nandita says, "Kaki, do game and play. Do come and play." Kaki started playing with the children. They had been
playing just for a short while when it started raining. उसके नीचे है थिंक एंड राइट विच गेम डू यू प्ले. आप कौन कौन सी गेम खेलते हो, ये 6 बॉक्स में आपको आपकी गेम लिखनी है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 1 to 2. देखो यहाँ पे 2 लोग हैं, वो चेस खेल रहे हैं. ऑल द चिल्ड्रन, ओ नो, काकी से लेट्स अस टू गो टू माई होम, we will play inside. The children were happy to hear this. All the children says, come on, let us go to Kaki's house to play. The children come to Kaki's house. Inside the house, Kaka and Fui were playing chess. Anita says, what shall we play? Rajat says, let us play doll's house. यानी घर घर. वो छोटी लड़कियां होती है ना, वो घर घर बहुत खेलती है, उसको डॉल्स हाउस कहते हैं. मैनी चिल्ड्रन सेज यस लेट्स प्ले डॉल्स हाउस. रजत सेज इफ वी हैड अ डॉल वी कॉल्ड हैव प्लेड विथ इट. काकी सेज डू यू वांट अ डॉल? लेट अस मेक वन राइट अवे. Kaki took out some old cloth. With Kaki's help, children made a doll. Some children wanted to play carom and other ludo. They formed groups and started playing. Okay, now next page, page number 1 to 3. Write the names of all the games mentioned in the lesson in the table below. Make a house in front of those games that are played indoor. Against the outdoor games, make a tree. Do not forget to write the number of players needed for the game. If some other things are also needed to play the game, then write their names as well. यहाँ पे names of the games mentioned in the लेसन में कौन कौन सी गेम का नाम लिखा है वो लिखना है, और वो कौन सी गेम है वो यहाँ पे आपको लिखना है. इंडोर या आउटडोर. इंडोर है तो हाउस लिखना है, हाउस ड्रॉ करना है, और आउटडोर है तो ट्री ड्रॉ करना है. नंबर ऑफ प्लेयर्स, और उसकी वो गेम में कितने मेंबर्स खेल सकते हैं वो नंबर्स लिखने हैं. थिंग्स एंड नीडेड. ठीक है. देखो मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी करके दिया है. ठीक है. आपको इस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 1 to 4. यहाँ पे ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ गेम. ब्लैंक बॉक्स है, उसमें आपका पिक्चर ड्रॉ करना है, गेम का पिक्चर ड्रॉ करना है. ठीक है. उसके नीचे है रिमेंबर एंड राइट. डू यू प्ले सम गेम्स विथ योर फैमिली मेम्बर्स? विच गेम एंड राइट वूम. फैमिली मेम्बर्स, आप आपकी फैमिली मेम्बर, कौन से फैमिली मेम्बर के साथ कौन सी गेम खेलते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है. आपकी फैमिली मेम्बर्स, और उसके बाजू में लिखना है नेम ऑफ द गेम. कौन सी गेम कौन से फैमिली मेम्बर के साथ खेलते हो वो आपको लिखना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं, और देखो यहाँ पे बॉल ड्रॉ किया हुआ है. हाउ मेनी गेम्स डू यू नो विच वी प्ले विथ अ बॉल. बॉल के साथ आप कौन कौन सी गेम खेल सकते हो वो आपको लिखना है. कुछ इस तरह से. फर्स्ट आएगा क्रिकेट, फिर हॉकी, बाद में फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, 7 टील्स एंड बेसबॉल. ठीक है. मैंने तो यहाँ पे काफ़ी सारे नाम लिखे हैं, लेकिन आप यहाँ पे लिख सकते हो. ठीक है. उसके नीचे है देखो आस्क एंड राइट. फाइंड आउट फ्रॉम द elders in your family or in the neighborhood which game did they play when they were
चिल्ड्रन, आपको आंसर में लिखना है कैच कैच, गिल्ली डंडा, कबड्डी, मार्बल्स, हाइड एंड सीक, डॉगी बॉल, रिवर और माउंटेन एंड आमली पिपरी. Okay? Now next page, page number 1 to 6. Think and write. Match the riddles with the pictures. Write the name of the game in the given spaces. यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दी गए हैं, उसको आपको मैच करना है और उसके पजल्स यानी उखाने बोलते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं. उसके नीचे आपको उस गेम का नाम लिखा है. देखो मैंने आपको ऑलरेडी फिल करके दिया है. सो फर्स्ट आएगा स्मॉल एंड कलरेड आर दिस ग्लास बॉल्स टू विन द गेम यू हैव टू एम विथ देम ऑल. क्या आएगा आंसर? मार्बल्स. सो उसके नीचे बॉक्स दी गई है, उसमें लिखना है मार्बल्स, MARBLES, मार्बल्स. उसके बाजू में है काइट का पिक्चर ड्रॉ किया है. उसके बाजू में इफ़ यू लैंड ऑन अ स्नैक डू नॉट फाउंड इन दिस गेम यू गो अप एंड डाउन. स्नैक ड्रॉ किया होता है और उसमें उसके ऊपर जाके अप एंड डाउन होता है. तो क्या होगा? यस, स्नैक्स एंड लेडर्स. सो आपको लिखना है उसके नीचे वाली बॉक्स में स्नैक्स एंड लेडर, SNAKES and LADDERS. Now उसके नीचे है It has no wings but it can fly high high up in the sky. आसमान में क्या उड़ता है? उसकी पंख नहीं है लेकिन वो आसमान में बहुत ऊपर उड़ता है. क्या आएगा? काइट फ्लाइंग. सो आपको उसके नीचे वाले बॉक्स में लिखना है काइट फ्लाइंग, KITEFLYING. बाजू में लिखा है ऑन द बोर्ड आर स्क्विरल्स ब्लैक एंड वाइट, देयर्स द किंग द क्वीन एंड द नाइट. क्या आएगा? चेस. सो आपको लिखना है उसके नीचे चेस, CHESS. ना उसके नीचे है किंग, क्वीन, एस एंड जैक. 52 ऑफ देम मेक अ पैक. क्या आएगा? यस, प्लेइंग कार्ड्स. नाउ उसके नीचे लिखना है प्लेइंग कार्ड्स, PLAYING CARDS, playing cards. Now next and last, 4 and 6. If you can get a century in, sure I can bet. क्या आएगा? क्रिकेट. सो उसमें लिखना है क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट. Now next page, page number 1 to 7. Besides playing, what else do you like to do? आपको यहाँ पे आपकी मनपसंद गेम का नाम लिखना है और उसके नीचे लिखा है Besides their work, what else do you family members do? Color the pictures which show what you family members do in their free time. If you want to add more, you can write or draw in the blank spaces. आपको ये जो पिक्चर दी गई है उसमें आपको कलर करना है और उसके नीचे जो 3 बॉक्सेस ब्लैंक दी गई है उसमें आपको अदर पिक्चर ड्रॉ करना है. जो आपकी फैमिली फ्री टाइम में जो भी काम करती है वो आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है. सो स्टूडेंट, टुडे आपका होमवर्क है ये चैप्टर रीड करना है और जो जो मैंने लिखवाया है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है. ठीक है. कल दूसरे पार्ट में मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ. तब तक स्टे होम, स्टे सेफ. बाय.